Hello, everyone. Welcome again. So, today I am feeling really honored to introduce my dear friend, Dr. Kamaljeet Kaur ji. Kamaljeet ji, welcome. Let's talk about Dr. Kamaljeet ji a little bit. She is a former professor of economics and she's retired from Punjabi University, Patiala. She has taught for 41 years, and as a university professor, she has attended many conferences, written many research papers, and she has guided many research scholars and completed their PhDs. And apart from all this, you will be really glad to know that she is wife of Dr. Sucha Singh Gill. Dr. Sucha Singh Gill is a well-known Indian economist of Punjabi origin. He's a well-known. He's a big shot. He's a very what you call. We are so proud of it that he's from Punjabi origin, Dr. Sucha Singh Gill. And apart from her academic excellences, she is a very good human being, very good wife, very good mother, and a very, very good friend. Very humble, and she is very nurturing. And I have so many things to tell about her, but I think most of us, we know her so well because she is with us almost every Friday. And you must have seen that the questions she put, and because she's very knowledgeable, she has been writing for several articles on women issues in newspapers like Punjabi Tribune. ठीक है मैं कमलजीत जी पंजाबी ट्रिब्यून ही होती है ना? Yeah, she's been writing for Punjabi Tribune, and because she was a coordinator of women studies in Punjabi University, so she knows the problems of women. That's why she can write well on these subjects, and today she will talk about gender-based violence. And over to you, Dr. Saab. Dr. Kamaljeet Gill ji, you are most welcome. And let's start the program now. Thank you, Ma'am Surjit ji, and especially Uzma ji, Executive Director. I'm audible. Malta Women Council, and all the respective members of SWERA, that is South Asian Women Empowerment and Equality Rights Alliance, and my dear all friends, thank you for such an elaborated introduction to me. And today I will, as Surjit ji has already mentioned, that I will be speaking on understanding the gender discriminations. And first of all, I will thank you for giving me this opportunity to share my views on this much debated and much discussed theme of gender discrimination, gender bias, which has been there now. This subject is not very new, and which is very prevalent specifically in the South Asian community, South Asian countries, not only in South, but it is prevalent in at a world level, though with the varying degree and varying extent in various form, but it is there. And we are here for elimination of all forms of discrimination against women, one, and thus providing equal rights, equal opportunities. Our best effort is here is to break the bias,
and bridge the gap. So my concentration today of today's lecture or today's discussion will be that first of all, we will let me give you a broad structure of my discussion. That first of all, I will be discussing the aspects of gender discrimination that through which it is reflected. Then it's what are the reasons of gender discrimination, and next we will discuss that in what form or what are the implications of this type of gender discrimination. And in the end, that we can say that in the end, in the second part, which is equally important, is that what is to be done and what needs to be done, what is being done and what needs to be done. So first of all, let me explain that just at the concept level, that what is gender discrimination. From the definitional level or from the conceptual level, we say that when someone is treated unequally or disadvantagedly based on gender. Here I take the meaning from gender is male and female, not the other. And it may not necessarily is a sexual nature. This is gender discrimination. And what is gender bias is it is in favor of one group over the other. Maybe it is based on ethnicity, based on color, religion, area, maybe friendship, or of course the gender. And here in this talk, in this session, I will be concentrating on gender discrimination, which is there on against the female in general. When that is when someone is deprived of or denied of what one is deserving for that. So specifically, we will be, this is my limitation, that we will be concentrating on our discussion on the South Asian countries only, not other in Canada or America, or because a little bit picture over here is different, laws are different, these are treated as the advanced societies, and South Asian countries, they are known as the relatively developing countries like that. So first of all, let me explain that what are various aspects of gender discrimination. These gender discrimination, the aspects I have divided is just to understand the concept. I have divided these aspects into one, social aspects, second, economic aspect, and the third is our political aspect. So let me explain briefly all these aspects, that what are the social aspects. These social aspects operate through our social institutions. In whichever society we are living, we have certain social institutions, and these institutions, sociologists, they divide that these social institutions are family institution, then institution of religion, institution of education, institution of medical, and institution which comes at the end, that is institution of death. So in social institution, there is another, that is our customs, traditions, rituals, festivals, all these taken together, taken in unison, they exert influence on the gender discrimination when it is taken from the perspective of the social institutions. So in social institutions, first of all, let me explain what is a family institution. So gender discrimination starts from the family. Family, we know that when, let me start from here, that when a baby girl is born, then as compared to the male baby is born, then during the birth, the discrimination starts at that point.
how we take the birth of a female child and how we take the birth of a male child. No, you can say disparity over the issue that we welcome male child in the family as compared to the female child. Though, let me say this thing, that though over the period of time, the system has changed, the traditions have also changed, but it is still there. It may be changing in the well-educated or in one state or the other, but overall picture is there that the birth of the baby is taken not equally so far as the male baby is concerned and so far as the female baby is concerned, specifically when we are talking about the birth order. By birth order, I mean that when you have first male child, then we say that the second baby can be male or the female. But when it is already female child is there and we are going for the second child, then lot of worries are there, and we pray to God that the second baby should, in all circumstances, it should be a male child. And we don't hesitate to go for the self-selected, sex selection of that baby. And we say that if we find that if it is a female, then we don't hesitate to go for the female abortion, female foeticide. You have never listened about the male child or when it is the abortion for a male feticide is there. It is always female feticide. And the celebrations attached along with the male child and female child, the rituals, the festivals, all these are tagged with the birth order and the composition of the family. Composition of family means that what number of male and what number of females we are having in our family. Even as we were talking earlier in one day, that when we are providing the facilities to the children, when we are providing to the toys or other celebrations are there, then there is definitely difference between the two. Gender differentials are very much there, and it starts from the very beginning. Then comes even I have listened in the specifically in rural area that so far as the breastfeeding is there, it is different so far as the female baby is concerned and the male female is concerned. Duration differs. And then there comes the institution of marriage. We treat that the female is, we use this term that parayatan or baganiti. We say that parayati means that this is not our daughter. She has to marry and go to the, migrate to the other home. Similarly, when we say that this is baganiti, this is means that she has to go there and mother-in-law will be now her, she will be acting as mother. So baganiti and parayatan, these are the phrases which are too often used for the girl child. And we say that she is a burden when we are to give the dowry, and during every occasion, whenever the parents are visiting to the girl's house, to their daughter, then they have to take something in the form of gift, one gift or the other, and they are demanding. And after that, even on the occasion of the marriage, not only dowry, and you know that the forms of dowry have changed. Earlier, it was a cycle and one watch was given to the groom. But now, from cycle shifted to scooter, motorcycle, car. And now, not only one car, but two cars are given, one for the in-laws and one to the boy concerned. And during that occasion of marriage,
the Punjabi people might be knowing that the songs which we recite during that occasion, ke Babal Tarmi kyo nivya, means ke because I am the mother or I am the father of a daughter, so my place is down as compared to the place of the sons or as the groom's parents. So this institution of marriage is again treated as a burden on the parents. Similarly, further stage comes when the death of that girl is there. Even during that period, you will be surprised to know that when the girl has died, she is living in the in-laws' house. And when after the last bath, the clothes or the dress she will be wearing is to be brought by her parents only. So she is not having any claim on her clothes to be wear, and which will be provided by her in-laws, but those are from her parental house. Even all the traditions which are attached during that period, during the death, they are to be performed by her mother, not by her mother-in-law or the mother-in-law's side. These are some of the direct institutions which are related with the family. There comes that when within the family, the question of provision of health is concerned. I had divided health into two parts, sub-parts. One is provision of the medical aid and the other related with the diet. So far as the diet is concerned, we all know that the girl is being provided the vegetarian diet, and to male, we are generally giving the non-veg diet. कहते क्या है कि इसका टेस्ट नहीं है या इसको पसंद नहीं है. Even the dry fruits, the rich protein diet that is given to, चाहे हम कहते हैं कि दही बेटे को दिया जाता है और लस्सी छाछ जो है वो लड़की को दी जाती है, लेकिन एज सो फार एज द न्यूट्रिएंट्स आर कंसर्न लस्सी में ज्यादा होते हैं, छाछ में ज्यादा होते हैं, दही में कम होते हैं, लेकिन this pattern is there. So far as the provision of diet is concerned, we differentiate between our children from male to female. And so far as the provision of medical facilities is concerned, if our daughter says that मेरा सर दर्द हो रहा है, तो बच्चे को कहेंगे सो जा या चाय पी ले, तेरा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं. अगर बेटे का हो रहा है, थोड़ा सा चाकू भी लग गया, तो ओह पता नहीं क्या हो गया इसको, तो डॉक्टर को दिखाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, तो हम we try to serve with the medicine and all that. So this difference between the medical, and I must quote over here that so far as the immunization to the children is concerned, difference is also there, specifically in the rural areas. Interval of the booster, provision of the immunization, टीकाकरण करवाना है, इसमें भी they are not very serious. Let me give you one small story that appeared in Punjabi Tribune. Madam Surjit ji might be knowing that that story was love of the grandfather towards her granddaughter. के ग्रैंड जो दादा है, वो बाबा है जो, वो अपनी ग्रैंड डॉटर को कितना प्यार करता है. आंगनवाड़ी वाले आए प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, तो वो उसका टीकाकरण करना था. दोनों बच्चे खड़े थे, तो जो बेटे को उसने कहा कि आओ बेटा इसको वो टीका लगाते हैं. बेटा रोने लगा, छोटा था, रोने लगा कि नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा. तो उसने कहा लगाता है कि नहीं लगाता, तू लगा, इसको जरूर इंजेक्शन देना ही देना है. तो उसको पकड़ के रोते हुए को इंजेक्शन लगा दिया. तो कहता है ये ठीक है. तो जब लड़की की बारी आई, पोती की बारी आई, तो उसने कहा हाँ आओ बेटा आओ, तो वो भी रोने लगी. तो दादाजी कह रहे हैं कि अच्छा नहीं बेटा जाने दे, कोई बात नहीं, ये तंग होएगी रोएगी, चलो इसको रहने दो. तो इस पे क्वेश्चन मार्क है
कि क्या ये दादे का अपनी पोती के प्रति ये प्यार था, इज्जत थी, या उसकी नेग्लिजेंसी थी कि उसने उसको जाने दिया कि अगर इसका टीकाकरण नहीं भी होएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटे का, पोते का टीकाकरण जरूर होना चाहिए। तो ऐसी जो हालत है, तो जी बोलिए, बोलो तुसी। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ? whatever the your system is, that you can ask a question, but let me, if you permit me, that let me finish one section, that these are the aspects, then we can have the questions, then reasons, then we can have questions, or whatever you like. No, that's fine. That's fine. Finish the first session and then we'll ask the questions. I will be very brief, क्योंकि इसकी explanation तो हम जब भी जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ points में जाऊंगी कि जो हमारे social institutions हैं, one institution which is very important and it is exerting influence on the gender discrimination like anything, that is through the family, through institutions, and through medical, and at the time of marriage, and one component is there, that is through the educational institutions. Educational institutions means that she has to face the discrimination so far as the choice of the institution is concerned and choice of the subjects is concerned. So far as the choice of the institution, I mean is that government institution or the private institution where there is English medium and टाई शाई लगा के जाते हैं और खूब अच्छी तरह, और थोड़ा महंगे भी होते हैं। लेकिन जब हम कहेंगे कि चलो बेटे को तो generally this practice is there, and in my country, in India, specifically in rural areas, this practice is very prevalent, that boy is going to the private so-called convent school, little bit expensive school, and the girl is going nearby the government school, which is relatively less expensive, or the provision from the, or the no fees is there, only amalgamating funds are there, so relatively less expensive is there. One is choice of the school, and the second comes at the higher level so far as the choice of the subjects is concerned. Choice of subjects means that whether she chooses the art subject or the science subject. When we go at the higher level, you might be knowing that so far as the STEM is concerned, STEM means STEM, science, technology, engineering, and mathematics. I have one study that is only in STEM subjects, there are 35% students which are going, 35 girls which are going at the higher level, other are the boys. वैसे हम कहते हैं कि generally the girls are shining, they are hardworking, in the merit they are coming. But here the question is that from which class and from which community they are coming from. They, the 35%, whatever share is, they are from the relatively upper middle class, rich class, relatively enlightened class, and from the urban areas. But in rural areas, this option of choice of the science subjects, non-art subjects, this is very limited. And other point is that dropout rate from the school, from the primary, from the middle, or at the higher level. The statistics are there. I won't go into the quoting the statistics, that the dropout rate from the school up after the middle class, the girls are dropping out at a higher rate as compared to the male. So this implies that gender gap in education is still there. Though education at the elementary level, they have made it compulsory, but still this gender gap in education is still there, about 17-18% males and females ka abhi bhi hai, not only at the lower level, but at the higher level also. Now, let me come to the very debatable or the critical element, that is our religion.
इस पे तो जितनी कम बात की जाए उतनी कम है, लेकिन we can say that in every religion the girl or the women are not treated at par as compared to the males are. Let us talk about the first, sorry to say, I'm not pointing out any religion, but I'm discussing purely from the academic point of view. Sorry to say the same. From the academic point of view, we can say that in Hindu religion, in some of the temples, females are denied their entry to enter those temples, specifically during the menstruation period. They say that the girl is dirty, female is dirty. And they are not only denied entry, they are not, on other days, specifically on Tuesday, they are denied to enter into Hanuman's mandir. कि ये वाले देवता जी हमारे बैचलर हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ये। मैंने खुद उनसे इंटरव्यू किया, बातें करी, एंड दे से हाँ ये तो होता ही है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं, इसलिए हम उनको एंटर नहीं कर देते। साउथ में एक सबरीमाला मंदिर है, उसमें भी ये एंट्री बैंड है। वहाँ सोशल मूवमेंट हुई, आवाज भी उठाई गई, जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, लेकिन they have not allowed. In Kerala, they are denying their entry. So even in the Tulsi ji says that dhor, gawar, shudar or nari, ye sab tadan ke adhikari. Means they are compared with the illiterate, they are compared with the animal. So what is this? No answer to this question, that where the justification of this discrimination lies. Let me talk about the Muslim culture. Only they are very particular about the dress code. Burqa पहनना है, hijab पहननी है, तो नकाब पहनना है, अगर बाहर जाना है। अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ, तालिबान फोर्स ने क्या किया कि उन्होंने मैंडेट डिक्लेयर कर दिया कि अगर बाहर जाना है तो दिस विल बी योर ड्रेस कोड एंड यू कैन नॉट मूव आउट when you are alone. So these restrictions are, though we can say कि नहीं हम तो नहीं पहनते हैं, लेकिन रिलीजियस जो कट्टरपंथी हैं वो ये अभी भी इम्पोज कर रहे हैं कि this dress code is mandatory for only the, you can correct me over here, that this mandate is only for the females, not for the males, I think. तो जो ये restrictions हैं only for females ही, women के लिए हैं. Now let me come in the Sikh religion. In Sikh religion जनरली ये कहा जाता है कि इसमें गुरु नानक ने कहा है, इसमें थोड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, that सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान. This means कि we should not discard that person, that lady who is giving birth to the great persons, great personalities. So one aspect of Sikhism is there that they do respect. But when we are talking about, or we are looking through the statistics, then I must say that in Punjab, and specifically in the Sikh community, this female feticide is of the highest order. So no combination in the theory and of the practice. Similarly, we can talk about the other institutions. और सारे religions में ये कहा जाता है कि आत्मा और परमात्मा, ये है कि जब हम spirituality की बात करते हैं, then we say that we, the Atma, are the females, and we are to meet the God, which is male. तो आत्मा और परमात्मा, ये जो कोटेशन बनाई हुई है ना, ये भी डाइजेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है. So these are the so-called, you can say, social aspects which are having influence so far as the gender discrimination is concerned. Should I take the economic aspect and the political aspect very briefly? So far as the economic aspect is concerned, it is reflected through total proportion of employment, one, differentials in earning, second, and thirdly,
so far as the financial independence is concerned. When we say that total proportion of employment, in total, on an average, we say that every lady is doing some work. She is employed somewhere. But when we see again the statistics, only the 32% of the total working age group women are in employment, and mostly they are in self-employed occupations, or mostly they are in unorganized sector. Why I'm mentioning over here the organized and the unorganized sector is, or the government or the private institutions, is that in public sector, when you are employed, then there is no discrimination, pay parity is there. Like in schools, in colleges, government, in universities, or in government banks, or other government institutions, is pay parity is there. But mostly we say that the female are self-employed, and they are employed in more 80 to 85% working women, total working women, and from those working women, the 80 and 85%, they are in unorganized sector, where they are facing the discrimination in the form of unequal payment, unequal salary, which they are getting. I mention over here particularly when in an unorganized sector, in agriculture, they are getting 1/4 less amount as compared to the males. If the male is getting the 100 rupees, I will talk in the rupees terms, 100 rupees, then females for the same work, so for the same duration, she will be getting 75 rupees. And this practice is also there in the construction work, also in mining also. So this means that when they are employed, this pay parity is not there. And secondly, during the time of the entering into the job, during the time of interviews, unnecessarily irrelevant questions are being posed, that whether you are married or unmarried. When you get married, who will be looking after your house? When you get, you are expecting the baby, then who will be looking after your baby? What arrangements you are to do? So these types of, I will say that absurd questions are asked, not to the male, but only to the male. These questions are asked. So, and sometimes her higher qualification becomes the negative point for her selection. That if we select you, then you may not stay back in our company or here in the job bank. So, and now the trend has come that not only we have been claiming, which is our birthright, we not only claiming the maternity leave, but now they are demanding for the menstruation period leave also. And in India, in 2 states, they have presented the bill, that in Kerala and Bihar, where their government, central government is there, that this parental and this menstruation period leave should also be there, which is not our. If we are demanding equality, then this can go against the female community in general. So similarly, when they are sitting on the negotiating table, so far as the payment fixation is concerned, salary negotiations are concerned, they never negotiate. Then they are sitting on this type of the table. They say, this salary is acceptable to you? Yes, this is. They will never negotiate as compared to that male. Earlier he is getting the lesser amount, now he will be demanding the higher amount, and he will negotiate about that payment also. And so far as the financial independence is concerned, we are not free. Whatever we are getting in the form of salary, in the form of payment, we are not free to spend that finances as our own choice. We have to ask to our in-laws, to our mother-in-law, or to my husband that should I go for the shopping? Can I go for this? Or we are earning, but we don't have the power to spend that amount as per our own choice. Most important point over here is that so far as the hold over the top positions is concerned,
we are entering into the job market, and you say that lots of women, they have crossed and they have entered into those jobs which earlier were denied to them, but now this so far as reaching at the top level is concerned, there is very less amount. Last week I was reading this New York Times, and the reporting was there that one journal is there, Forbes, Forbes. The reporting was that during this year, coming year into academic year 2022, in the top 20 first ranked universities in America, there will be 11 positions which will be held by the females of these first rank universities. This sounds good, that from 2011 will be held by the female, and 5% will be from the brown and the black ladies. But in the very next paragraph, he says that from amongst the top 130 educational institutions in private as well as government institutions, only the 22% will be held by the females. The rest will be in the form of vice chancellor, vice chairman, or the president. They will be by the males only. So first paragraph and second paragraphs, that depends ke kahan tak humne padhna hai. And in Japan, we know that only 2% of the positions in the top positions in the company, they are held by the ladies, not all. So far as the employment is concerned, so far as the earning is concerned, Boutros Boutros-Ghali, the UN president, had to once say that women perform, let me quote over here, women perform 1/3 of total work, they earn 1/10 of the income, and they possess 1/100th of the wealth of the whole whatever they are earning. So to end this aspect of the economic aspect of gender discrimination, I will say that still glass ceiling is there. Glass ceiling is only for the females, for the women, not for the males. And it is quote that we are to see over here, that I am quoting over here, whether there is crack in half of the ceiling or still half of the ceiling is still intact. We are to see this thing. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ I will speak in Hindi, that in so far as the employment is concerned, so far as the economic aspect is concerned, this is exerting influence through एम्प्लॉयमेंट के की तरफ से आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट जब हमारी सिलेक्शन होती है उसमें उसकी तरफ से आ रहा है, और जो हम अर्न करते हैं उसकी तरफ से आ रहा है। पैरिटी नहीं है, बराबरता नहीं है, और जो फैसिलिटीज स्पेसिफिकली औरतों के लिए चाहिए एट द वर्क प्लेस, वो भी नहीं प्रोवाइड करी जा रही, क्योंकि ये मैंडेटरी है, जरूरी है कि जहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे वहां आपको स्पेसिफिक नेचर की फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। स्पेशल बाथरूम होगा, स्पेशल स्टाफ रूम होगा, स्पेशल वो एक कॉमन रूम होगा जहां वो बैठ के बच्चे को फीड कर सकती हैं, क्रैश होगा। सो दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज जैसे कि कौन जे बॉदरेशन लेगा, तो 9 तक रखो, 10th को एम्प्लॉय ही ना करो। सो दे आर अवॉइडिंग, और जब 19-21 का फर्क आता है मेल और फीमेल के, तो दे प्रेफर के मेल को ज्वाइन करवा लो, फीमेल को रहने दो। सो इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस सो फार एज द फीमेल एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न, एंड सो फार एज द टॉप रैंक होल्डिंग द टॉप रैंक इज कंसर्न। टॉप पोजीशन पे हमें नहीं जाने देते हैं,
जब भी हम एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, जो ब्यूटिफिकेशन वाली जो सीट होती है ना, कि डेस्क पे बिठा दो, रिसेप्शनिस्ट बना दो, या जो वो आजकल स्टारबक्स पे या मॉल्स पे होता है, तो जैसे वो क्लिनिक है उसमें रिसेप्शन वाली है, जो पर्ची बनानी है, कार्ड देखना है, उस पे तो गर्ल्स को बिठा देते हैं, लेकिन अंदर जो डॉक्टर है, जो जिसने देखना है, वहां तक हायर लेवल पे जो आता है, उसमें गर्ल्स को जनरली वो प्रेफर नहीं करते हैं। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द ग्लास सीलिंग, जो शीशे की जो छत बनी हुई है ना, उसको हमने अभी भी हमने ये देखना है कि उसमें जस्ट जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जो जैसे आप लोग ये उद्यम कर रहे हैं, तो उससे सिर्फ क्रैक ही आया है आधी छत में, या अभी भी आधी जो छत है वो तोड़ने के लिए बाकी पड़ी है। तो लास्ट वाला जो है, दैट इज अ political aspect of gender discrimination. Here I will take the political representation in the parliament, then political decision making and exerting the voting right. So far as the political participation is concerned, जो देखने में आता है कि हमारी वो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो हमारा राष्ट्रपति है, ये जो तो 2-3 पोजीशन है वो फीमेल की आ गई, लेकिन जो 33% रिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट है वो अभी भी 4 बार पार्लियामेंट में पेश हो चुका है, लेकिन अभी भी जो रिप्रेजेंटेशन है लेडीज को अभी 33% वो भी नहीं मिली है। जो मिली है वो लोअर लेवल पे है, जो कि हम कहते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में है। और जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, ना तो वो हमें घर में अलाउड है कि हम कोई इकोनॉमिक या फैमिली के साथ संबंधित जो भी डिसीजन है वो हम दे सकते हैं, वी हैव द पावर और नॉट। और सिमिलरली एट द पॉलिटिकल लेवल, जो सो फार एज द वोटिंग राइट इज कंसर्न, जब वोटिंग होती है तो हम जनरली घर में सलाह करते हैं कि किस पार्टी को वोट दी जाए, और ये सलाह हमेशा मानी जाती है मेल मेंबर की, चलो यार इस पार्टी को वोट करते हैं। मैं नहीं कह सकती हूँ कि नहीं मैं ये वाली पार्टी को पसंद नहीं करती, मैं दूसरी को करना, नहीं, हम फैमिली यूनिट है, एक ही फैमिली को रहते। तो अल्टीमेटली माना जाता है कि वो जो कुछ कह रहे हैं, हमारे जो मेल मेंबर कह रहे हैं, उसी का मान के और उसी पार्टी को वोट जाती है। और जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात आती है, उसमें फीमेल पंचायत सरपंच भी हैं, पंचायत भी हैं, पंच मेंबर्स भी हैं, लेकिन जहां जब मीटिंग अटेंड करनी होती है, ये भी केसेस हैं, अब वो थोड़ा उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि उनके मेल मेंबर चले जाते हैं। जो पंच है या सरपंच है, जो पति सरपंच है वो रिजर्वेशन के होने की वजह से लोअर लेवल पे लेडी है, लेकिन उसका जो काम कर रहा है, उसकी जो बैक ड्राइव सीट, वो बैक सीट ड्राइविंग हो रही है, दैट इज डन बाय हर हस्बैंड और द मेल मेंबर्स which are there present in the family. So these are some of the aspects of family institutions and economic institutions and the political institutions which are directly exerting influence so far as the gender discrimination in the society is concerned. My next is reasons we will discuss after any queries or any questions, please. Do we have So any? now anybody can ask the question. हाँ जी नरिंदर जी, तुसी अनम्यूट करो अपने आप नु। जी, in between you said that ladies are not allowed to go to temples, especially Hanuman temple. In India, Can you repeat it again, please? हाँ जी, Repeat करना. you said that ladies are not allowed to go to temples, especially Hanuman temple. Yeah. I have never seen this because where we live in India, in that locality, there is only one temple, and that is of Hanuman. And everybody used to go there. Ladies used to do, especially on Tuesday, they used to do kirtan. And actually, people are now becoming educated, and they are becoming aware of the things. So slowly and slowly, these things are changing. Most of these, whatever ideas were there
customs were there, they are not following those. Secondly, you say that most of the attention is given to the education of the boys, not girls. You should not say that I am saying particular myself. This happens that my father used to say, I will give the highest qualification to my daughters. And I have two brothers, they have become engineers. But we were 5 sisters and we were all highly educated. He never made any difference between our daughters, though we were quite large, in large numbers, we were 5. And we were equally treated. Then one thing more, if some lady is working, doing job higher than the husband feels jealous always. He always want to cut her and degrade her, and often feels jealous. I can tell you this. Though he may say or not say what that lady can feel. And if there is a man, he can go everywhere, anywhere. If lady goes and comes half an hour late, kaun si? Kade yaar le gayi si? Kithe gayi si? Kyun gayi si? We can't question them, but they will definitely. And they are suspicious about our whether we are going to our office or anywhere where we work. They think we go there only for gossips, nothing else. Whenever I used to come back, you say, But you And get you- up early in the morning and up to 10 o'clock, you are always busy. Even then, you can't get the respect, I can say. This is my idea here. True. Thank you. हाँ जी उस्मा जी True. हाँ जी कमलजीत ਤੁਸੀਂ जी। जवाब देना चाहते कमलजीत जी जिस तरह तुसी कहो कि पहले मेरे ख्याल पहले सवाल पूछ लो Yes. सारे हाँ सुन लो पॉइंटेड मैं एक हाँ। रिक्वेस्ट करूंगी कि जे पॉइंटेड सवाल हो जान दैट विल बी इजी फॉर मी टू आंसर हाँ जी उस्मा जी सो कमलजीत जी जबरदस्त आपने मनवा लिया कि आप जबरदस्त आपको कमांड है इस सब्जेक्ट पे थैंक यू सो मच मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है इस सब में हमें पता है डिस्क्रिमिनेशन हो रही है औरत का क्या रोल है सिर्फ ये मेरा क्वेश्चन है तड़प रही है ऊपर जाने को। Yes, any other? Yes. Now, let me answer the questions. There are questions from Tom. Narinder ji da pehla hai. Let me make clear over here that we here are sitting, all my friends, respected friends who are sitting over here and discussing the issue, they are well enlightened and well educated, well aware of the situation. And we are managing not only our own affairs, we are creating awareness in the society. और जो ये मैं डिस्कस कर रही हूँ ये स्पेसिफिकली इट पर्टेन्स टू द एसोसिएशन कंट्रीज including from where we are coming, you and me are coming, and I'm not talking about the class from which we come. The high upper class, they don't bother that they are having male or female child in the family because they don't have to bear the burden. They don't take that burden that if my daughter is going to higher education even in a private institution and I will have to pay. I cannot bear the cost. So far as the getting of the education is concerned, now I don't hesitate to say this thing, that education has become a business. It's not a departing of knowledge वाला जो पहले था ना, आप भी टीचर रही हैं, हमारे जमाने में होता था कि this was a pious profession. ये जो जैसे डॉक्टर का है, टीचर का है,
नर्सिस का, है ना। इसको हम ऐसे भक्ति की तरह लेते थे कि वी आर डूइंग एज सर्विस, लेकिन आजकल ये बिजनेस हो गया है। यू पे फॉर द एजुकेशन एंड गेट फॉर द एजुकेशन, यू आर बाइंग द एजुकेशन। सो वहां पे क्वेश्चन आता है कि इफ यू हैव द कैपेसिटी टू पे, देन get that education. If you don't have the capacity, which is specifically in the marginalized group of the females. And so far as जो पहला क्वेश्चन था आपका कि टेम्पल्स में जाना, वो जो है टेम्पल्स में मैंने भी बात की है, 1-to-1 बात की है। आप हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हो, लेकिन उस लेडी में शी वाज बैनर्जी, वो शी वाज बेटर जी, तो वो पक्की वो उसमें ब्राह्मण जात की, वो कहते हैं कि आप मंदिर में जा सकते हो, लेकिन हाउ फार इट इज ट्रू मैं नहीं, मैं आपको सिर्फ शेयर कर रही हूँ। आप मंदिर में जा सकते हो, लेकिन भगवान के चरणों को टच नहीं कर सकते। नहीं, वैसे जो पंजाबी लोग है ना, वो ऐसे वो नहीं मानते, वो नहीं बिल्कुल मानते, नहीं हम लोग मानते ना, बिल्कुल हम नहीं मानेंगे। लेकिन ये भी बात क्यों आई पंजाब में अगर नहीं है? आई वाज टॉकिंग अबाउट द एंट्री अबाउट द केरला, हमारे पड़ोस में यहाँ पे रहते हैं, उसका पता है मुझे, हाँ केरला का पता है। हाँ, तो जो मैडम तो सस्पिशन वाला तो पॉइंट है, आई फुली एग्री विद यू के सस्पिशन तो रखते हैं। मैं जो आप उस्मा जी पूछ रही थी कि रोल ऑफ वुमेन क्या है, ये हम लास्ट में लेट मी डिस्कस दैट व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज बीइंग डन। वो मैं थोड़ा सा इसमें टाइम 5-10 मिनट डिवोट करूंगी कि अब सिचुएशन, व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो एंड what are the causes of this and what is to be done, please. Thank you. हाँ जी गीता जी। हाँ जी। In 2020, I visited my remote village, my in-laws place, and वहाँ पे मुझे पंचायत के पास में गई, and there was a girl, lady who was a mason's wife. उसको ना हिंदी आती है, ना अंग्रेजी आती है, कुछ भी नहीं आती है, ना बंगला आती है. She uses only dialect. वो बोल भी नहीं पा रही. I was not allowed. मुझे वो उसको मिलने को रोक रहे थे कुछ लड़के, जो कि वहां पे नहीं थे, मतलब वो गुंडे ही दिख रहे थे. तो फिर मैंने इंग्लिश में बात किया, जो आई वांट टू टॉक टू दैट लेडी. जैसे मैंने इंग्लिश में बात किया तो मेरी थोड़ी सी इज्जत हुई. और मैं वहाँ की बहू हूँ फॉर लास्ट 54 years. तो मैं वहाँ जाती नहीं हूँ, कभी कभी जाती हूँ, तो उनको पता नहीं मैं कौन हूँ. मैंने कहा मैं उस घर की हूँ और मुझे बात करनी है. ये डस्टबिन नहीं है तो आप सारा कूड़ा कबाड़ सब मेरे बाउंड्री के आगे फेंकते हो. आपको पता है कितने बड़े बड़े चूहा सांप सब आता है हमारे घर में, उसमें छेद करके. ये आपको फेंकना बंद करना है. टिल नाउ इट हैज नॉट बीन टेकन केयर. मैंने देखा लोअर लेवल में इन बंगाल ऑल द गर्ल्स आर देयर फ्रॉम लोअर कास्ट, जिनको कुछ आता भी नहीं है, उनको बिठाया गया. These kinds of things the government should look into. Political parties सिर्फ पार्टी के दुहाई देके जो काम करते हैं वो not for the public. Public को फायदा होना चाहिए. यदि हमें बीमारी लगता है, यदि वहां से चोर भी घुसा है, बड़ा बड़ा छेद. I had to do the वो wall. I was there for 21 days. Within that time I repaired the wall, got it repaired, ताकि वहां पे जो है उनको सांप ना काटे, चूहा ना काटे. बड़ा बड़ा चूहा आ रहा है किचन के अंदर, जाली काट दिया. सो आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स इनसाइड, क्योंकि एक जो है पंचायत नहीं कर रहे. एंड दिस हैज बीन नेग्लेक्टेड. ये होता है, ये बंगाल में हो रहा है, मुझे पता नहीं अबाउट अदर स्टेट्स. और जो ये है अबाउट डिफरेंशिएशन, मद्रास में बच्चियों को जब पीरियड्स होता है देन दे हैव ए फेस्टिवल, लोगों को बुला के खाना खिलाते. ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी तरीका है? Is it honoring the girl or dishonoring the girl? And this is in Africa also, they celebrate this. Now this should not be First time. They celebrated for the first time. First time. I know there are many things for in Africans. First time, but they should not celebrate in any part of the world, because this is really dishonoring the womanhood.
वहाँ And के I read somewhere that when the ladies have periods, they have to go out of the village and they sleep outside. Now some women, they arranged some some space, some places where the ladies can sleep actually comfortably. Otherwise, they had to just go out of the village and sleep outside. which place? Actually, no, I read somewhere, I forgot अभी- which. पहले के टाइम में भी ऐसा था कि मुझे याद है तब तक मेरी नहीं, और एक चीज मैंने देखा है, आई हैड ए ट्यूटर फॉर मैथ्स, उनकी वाइफ का एक नाक में वो था, नाक छिदा। मैंने कहा ये किस लिए किया आपने? आई आस्क्ड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई वाज अ चाइल्ड, आई वाज स्टडीइंग। सो मैंने पूछा तो बोले नहीं, ये ना हस्बैंड को अपने सांस से तकलीफ होगा। व्हाट इज दिस? हु हैज टोल्ड? हस्बैंड को होगा, उसका डेफिशिएंसी से होगा। एक्चुअली एनलाइटमेंट नहीं होने से ये एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी जिंदगी में। इम्पार्ट एजुकेशन, दिस इज वेरी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटी की इज्जत बचाओ पहले तो। अब रास्ते मानते में रास्ते में उसे कोई नहीं छेड़े, उसको मशरूफ रहना है। रात को 10 बजे भी आए, चाहे 12 बजे आए, उसको एकदम क्यों नहीं करते? हमारे देश में होना चाहिए। हमारे देश में इतनी लाइट है, इतना कुछ पढ़ाई लिखाई है, इतना कुछ हेरिटेज है, पर ये चीज जो भी अभी जो लीडर्स है पढ़े लिखे नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, पढ़ा लिखा जो है वो लस्टर देता है, जी। वो हाँ जी, जिंदगी उस्मा जी। तो गीता जी, इस वक्त जरा से हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ये बाद ठीक है। में डिस्कशन होगी। हर्षा जी Sure, कुछ ऐड करना चाह रही थी, उनकी Sure, आवाज sure. नहीं आई थी। हाँ, Sure. मैं वही कहना चाहती थी कि पहले के जमाने में यही था कि वो रेशम के गद्दे पे मेरी मम्मी का यही हाल था कि पीरियड के टाइम 5 दिन उसको अलग सोने का, इसके बर्तन अलग, इसको छूने का नहीं, इसको सब कुछ अलग रखते थे। जी, Actually, पाकिस्तान में एक जगह है चित्राल, तो वहाँ शहर से बाहर कर देते हैं। चित्रांग, जो गांव में चित्राल में, बहुत साल पहले की बात है जब मैं वहां गई थी, तो वो लड़कियां उस जगह पे थी और उन्हें डायरेक्ट खाना नहीं पहुंचाया जाता था, कि हमारे वहां कहा जाता है कि ये नापाक हैं, ओहो, उन्हें अलग से वो दिया जाता था कि हाथ ना लगे किसी और का उनको। तो ये बहुत साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, अब तो दुनिया में हर जगह ही चेंजेस आ रही हैं। मैंने ना एक अफ्रीकन बुक पढ़ी है, कालों की स्पेशल, उसमें उनके रिचुअल्स जो दिए हुए ना, पढ़ के ना हैरानगी होती है देख के, स्पेशली मैरिज, मेंस्ट्रुएशन, इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें लिखी हैं। चलो अब आप उनका टॉपिक चलता है। जुबदा, सोशल जुबदा जी, आप बताएं, क्या आप क्वेश्चन पूछिए अपना। मैं ये सारी बातें मैंने सुनी है कि वो जिस तरह उन्होंने बताया कि ये बच्ची को इंजेक्शन नहीं लगाया, बच्चे को इंजेक्शन लगवा दिया। तो एक्चुअली मैंने जिस घर में आंख खोली है वहां पे मेरी माँ ने ऐसा कोई डिफरेंस रखा ही नहीं था। लेकिन मेरी दादी जो थी ना, थोड़ी सी थी, लेकिन मेरी दादी का भी अपना प्रॉब्लम था, क्योंकि उनके घर में 4 बेटियों के बाद मेरे वालिद पैदा हुए थे, मेरे फादर पैदा हुए थे, तो वो उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो मैंने अपनी होश में जब देखा कि मेरी दादी जब खाना पकता था तो मेरे अपने बेटे के लिए वो खाना सबसे पहले अलग निकाल लेती थी। तो ये मैंने देखा कि जब मैं ज़रा बड़ी हुई हूँ तब भी हमारे घर में किसी किस्म का कोई ऐसा डिफरेंस नहीं था बेटे और बेटी में। अगर बेटा अंडा खा रहा तो बेटी भी अंडा खा रही है, क्योंकि हमारी माँ ने शुरू से रखा था कि शख्सी आज़ादी का हक हर बंदे को हासिल है। उन्होंने ना हमसे हमारी आज़ादी छीनी, ना बेटों से। कभी हम लोगों ने अपने भाइयों के कपड़े इस्त्री नहीं किए थे, वो कभी कभार कभी हो गया तो कोई इमरजेंसी हो गई तो हमने कर दिया, वरना मेरी माँ कहती थी अपना काम खुद करो। हाँ जी जुबदा जी, एक्चुअली ये बात है कि उन्होंने बताया, डॉक्टर कमलजीत ने, कि ये कुछ एक फैमिलीज में है जो एजुकेटेड है, जो एनलाइटेंड लोग हैं, उनमें ये नहीं है। लेकिन ये मासेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये उसकी बात कर रहे हैं। ये हाँ जी, हमारे घरों में नहीं हुआ, मैंने भी कभी हाँ, किया, हमने नहीं फेस किया कभी, लेकिन अभी भी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर फेसिंग दिस। हाँ जी उस्मा जी, आप
जी कमलजीत जी, हमारा चूंकि ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आया फेसबुक से। या तो ये पूछा गया है, हमारी फेसबुक जनता ने पूछा है, research studies show that preference of male child is common amongst South Asian Punjabi in Canada is common, resulting in sex selective abortions. Why is it happening in Canada? Very good question. In fact, I was going to discuss this very point in the second section, which we are now discussing. That is the reasons for gender discrimination. Let me explain specifically this question, that preference for male child, why it is there not only in South Asian economies, countries, societies, but it is very much there here in Canada. Not only in Canada, I was there in Sweden. I was a visiting professor over there for 3 months. We lived out there. I interacted with there in Lund University in Sweden. There, the chemistry teacher, I'm not remembering the teacher. I particularly asked this question, and she also narrated the same thing, that we want to have both of girl as well as the son. So this aspect is very much there. But let me explain firstly that why this preference for male child is there. That this gender discrimination is not the new phenomena. Let us be clear about this thing. Centuries old, this discrimination has been there because there were invaders were coming from one country to another, जीतने के लिए आते थे, और जब एक राजा जीत जाता था, दूसरा हार जाता था, तो उसकी जब धन दौलत लेके जा रहे हैं, तो along with those धन दौलत, वो उनकी औरतों को, लेडीज को भी साथ में ले जाते थे, जिसका मतलब है कि बेपत्ती होती थी, इंसल्ट होती थी उनकी औरतों की। तो वो तब से ये प्रैक्टिस बन गई कि औरत को पैदा ही ना होने दो। तब से जो एटीट्यूड टुवर्ड्स, फ्रॉम द सेंचुरीज ओल्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स द फीमेल्स, ये सोसाइटी में आ गया कि मेल मेंबर्स तो फ्रंट पे जाके लड़ते हैं, लेकिन हम ये जो बेइज्जती हो रही है, इज्जत पे जो हाथ आता है, आंच आती है, वो नहीं आनी चाहिए। दिस इज वन रीजन। एंड सेकेंड रीजन इज द पैट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ आवर सोसाइटी। जो ये पैट्रियार्कल माइंडसेट है, पिता पुरखी है ना, जो पिता पुरखी समाज है, वो सारी सोसाइटी में है कि मेल मेंबर की, फादर की चलती है, और जैसे भी फैमिलीज हैं उसमें चलती है। और इसी माइंडसेट की होने की वजह से ये है कि वी वांट टू हैव एट लीस्ट वन मेल चाइल्ड इन द फैमिली, मीन्स के I must have one son in the family. Specifically, this is there in the rural area. Why this is there? This is the answer is directly in India. This is directly can be derived from the rural economy. That in rural economy is basically an agricultural economy, and in agriculture the manual labor is also there, because hiring the labor from outside is very, very expensive. So when the domestic labor family members are going into the field, working over there, then that occupation becomes relatively cheaper. You don't have to borrow the services from abroad. When the male members are there in the family, working in the field, then they are self-earning for the family. And because of the related other issues which are there, and a long back, I read the advertisement in the Punjabi newspaper here in India that sex selective test is being done over here, and you can come and get yourself tested. कि आओ हम यहाँ पे लिंग टेस्ट करते हैं। तो मैंने वो कटिंग अभी भी रखी हुई है, कनाडा की अखबार की। वो है कि हमारा माइंड सेट अभी चेंज नहीं हुआ है। जो सोच है ना, पैट्रियार्कल सोच है, वो जितनी देर तक नहीं जाएगी, कैसे जाएगी वो अब हम अभी डिस्कस करते हैं। जितनी देर तक वो परसिस्ट करती है, उतनी देर तक ये जो प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड है ना, वो
रहेगी। और जितनी देर तक हम सोसाइटी में औरत को बराबर का दर्जा, इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते उसको, तब तक उसको डाउन ही रखा जाएगा और उसको एट पार नहीं गिना जाएगा। लेकिन ये जो रीजन इसके कोई भी हो, जैसी भी प्रैक्टिस चल रही है, इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत बहुत भयानक है, बहुत बहुत डेंजरस है, आई ओपनर है, हम फेस कर रहे हैं। लेकिन लेट मी पुट इन सिस्टमेटिक मैनर। जो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीकेशन है वो है कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है। When we are going for the sex selective abortions, female feticide is there, so there is a skewed sex ratio. The number of female babies taking birth is relatively less per 1,000 as compared to the male which are taking birth. I know, I think all of us are familiar with the concept of sex ratio, that what is the percentage of females per 1,000 males. So this is when the China adopted the norm of one child family norm, then that also went against the female child. Only they were opting for the male child getting aborted, the female child, and the imbalance in their economy they have also faced, and they have now reverted back. Similarly, in early 70s, India adopted for the norm of two-child family norm, and then that practice came that female sex selective selections will be there, were there, and these female feticides was being aborted. Though the rules are there, कानून है, PNDT टेस्ट है, इसके अगेंस्ट है, लेकिन उसको कैसे कैमोफ्लेज किया जाता है, उस पर कैसे पर्दा डाला जाता है, वो भी हमारे पास इसके स्टैटिस्टिक्स हैं। लेकिन ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ये जो हो रहा है ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज वेरी वेरी अलार्मिंग। तो दूसरा है कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। सोशल इम्पैक्ट इज दैट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीएंड्री, व्हेन द one wife is having married with the multiple husbands, and even in India, हो सकता है कि आप कहो कि नहीं ये तो प्रैक्टिस हम नहीं देखते हैं, लेकिन in rural areas and specifically some areas of the Shimla, one community is there, उससे बात हो रही थी, तो वहाँ even in Jammu Kashmir this practice is there कि ये प्रैक्टिस ऐसी है कि अगर मैं खुश हूं, एक दो तीन हस्बैंड अगर हैं, they are earning and they are feeding me, then I don't have the problem. वो जो साइकी है ना उसके दिमाग में ये ऐसे कुट कुट के भर दी जाती है कि ये पॉलीएंड्री का सिस्टम चल रहा है। और सेकेंडली, when in the areas, specifically north western areas where the sex ratio is very very skewed, कम है लड़कियां, तो वहां पर भी ये हो रहा है कि काली मिट्टी से लड़कियां लेके आ रहे हैं, बंगाल बिहार से लड़कियां लेके आ रहे हैं, क्योंकि उधर अभी ये लड़कियों का नंबर जो है ज्यादा है, ठीक है। तो वहां से जो लड़कियां तो पंजाब में जब आती हैं तो कहते हैं ये तो काली मिट्टी से हम खरीद के लाए हैं, बाइंग ऑफ द ब्राइड्स हो रहा है। और लेकिन बाइंग ऑफ ब्राइड हो तो जाता है, लेकिन उसको एट पार ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता उस फैमिली में। जब यहाँ खरीद के ले आए बंगाल वाली साइड पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से वो खरीद के ले आए, लेकिन उसको जो ट्रीटमेंट है वो इक्वल वाइफ वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। उसको कहते हैं तेरे को तो खरीद के लेके आए हैं, so your place is not at par as it is the place of the wife should be there. So polyandry, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैमिलीज में वो जो लड़के हैं वो अनमैरिड ही रह जाते हैं, बैचलर रह जाते हैं। और दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, इट मे बी न्यूज फॉर यू कि कई बार कंसेंसस से भी होता है। मदर इन लॉ कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तेरा देवर है, तेरा जेठ है, उनकी मैरिज नहीं हुई है तो कोई बात नहीं होती है, जमीन की जो डिवीजन है वो नहीं होएगी। तो दैट इज समटाइम्स दिस इज विद द कंसेंट of the family members, specifically the elders, the mother-in-law. And the most important, which is prevalent impact or implication of gender discrimination, is the rising violence against the women.
This is domestic violence. This is violence at workplace, violence at the public places, in the buses, at the railway station. We generally talk about the domestic violence के मारकूट होती है, हस्बैंड को मारता कूटता है, फिजिकली वो कभी बर्तन फेंकता है, कभी खाना फेंकता है, ऐसे ऐसे होता है. लेकिन इसको भी मैंने 3-4 पॉइंट्स में बांटा है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज डिफरेंट, violence at workplace is different, violence at public places is, all these forms are different, but this is the dangerous implication of the gender discrimination. अब यहाँ पे सवाल आता है, मैं आप सबसे भी पूछना चाहूंगी कि this violence against women, we have to solve this question, whether this violence against women is due to the gender discrimination and declining sex ratio, or because sex ratio is skewed, number of females is less, and this is giving rise to the violence against women. So question mark is there. So, and the next implication is widening the gap, educational gap, employment gap, and institutional other जो gap हैं, जो ये बढ़ रहे हैं, इनको हमने नैरो डाउन करना है, बाद में करते हैं. और लास्ट वाला पॉइंट जो इम्प्लीकेशन का है, दैट इज रिलेटेड विद द commodification of the women. How women is presented in the media, in the advertisement, and in the culture, in local language. जो songs हैं, जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, जो भी जोक्स बनाए हुए हैं, वो सारे जो हैं, those are going against the female, against the generosity or the, you can say कि उसकी इज्जत के खिलाफ जाते हैं सारे सॉन्ग्स वगैरह. लेकिन we don't pay, हम डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, और जो जोक्स हैं उस पे भी कई बार हंसते हैं. मैं आई मस्ट टेल यू कि कई बार मैंने देखा है कई ग्रुप में लड़कियां, लेडीज भी जो उनके अगेंस्ट जोक जा रहे हैं, वो पोस्ट कर रही हैं. बहुत इरिटेशन होती है, बहुत इरिटेशन होती है, लेकिन विदाउट नोइंग द इम्प्लीकेशन के इसका मतलब क्या है, इस जोक का मतलब क्या है. तो और कई बार गाने चल रहे हैं कि उसका तेरा दुपट्टा ऐसे हो गया, कुगी ऐसे हो गई, है ना, तो उस पे डांस कर रहे हैं. तो शीला की जवानी, हाँ, है ना, ऐसे मतलब सॉन्ग चल रहे हैं. लेकिन इससे भी वो जो मैं मुर्गी हूँ चटकाले पिया, हाँ, मैं मेरी आँखां चोपी माइया, और मैंने घुट घुट करके पी माइया. तो ऐसे जो सॉन्ग्स हैं, वी आर टू हैव सम पॉइंट करना चाहिए, और इस पे कुछ अंकुश लगाना चाहिए कि क्या हो रहा है. So these are the negative implications of the prevailing gender discrimination which are facing in the society. तो मेरा last point जहाँ पे रह जाता है कि what is to be done, what is being done, which is very, very important over here. Should I continue? Sure. So मैंने इनको भी कुछ points में बांटा है कि we are here to have equal rights, equal opportunities. If we want equal rights and equal opportunity, and we are interested in elimination of all kinds of discrimination against women, then we will have to think over this, that what is to be done. And what is being done is that what is the role of the existing institutions. That is role of the government, role of the NGOs, and role of the social movements, and lastly, the role of the religious leaders or the other enlightened leaders. Let me first explain briefly that what can be the role of the government. Role of government can be of the two types. One is the legal role and the other is administrative role. Legal role means, which we are already having, that enactment of the laws. हर एक aspect के लिए हमारे पास laws हैं. पॉक्सो है, सीडा है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट अलग से लॉ है, डॉरी का लॉ अलग है. हर एक एस्पेक्ट के लिए जो भी हम गिने उसके लिए कानून बना हुआ है. लेकिन
उस कानून को इम्प्लीमेंट किसने करना है और कौन कर रहा है. दैट इज the role of the administration. So effective compliance of the rules of the existing framework is very, very necessary. Not only enactment of the laws is not sufficient, we are to be specific about we are to be sure that these laws are to be implemented. These are to be addressed to the women folk. So कानून सिर्फ बनाने ही जरूरी नहीं है, कानून को इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है. जैसे कहते हैं ना कि जस्टिस इज नॉट टू बी डन, इट शुड लुक लाइक दैट जस्टिस इज बीइंग डन. कानून अगर आपके साथ जस्टिस किया जा रहा है तो इट शुड लुक लाइक, ऐसे नहीं है कि आसमान में बातें हो रही हैं तो हो कुछ भी नहीं रहा है. और सेकंड है कि रोल ऑफ एनजीओज का क्या है. एनजीओज बहुत ऑपरेट कर रही हैं, उनका जो रोल है स्पेसिफिकली टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट देयर आइडेंटिटी, अबाउट देयर स्ट्रेंथ, टू एनलाइटन देम. और ब्रीफली हम कह सकते हैं टू कैपेसिटी बिल्डिंग, कि यू शुड नो योरसेल्फ, वी शुड टेल द वीमेन फोक, हमें पता है, हमको पता कि ये लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, हम अवेयर भी हैं, हमारी फैमिली में ये नहीं होता, सब हम कह सकते हैं. लेकिन जिस फैमिली में ये हो रहा है वहां जाकर के एनजीओज का ये जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनका ये फर्ज बनता है कि गैदरिंग करो, सेमिनार्स करो, कॉन्फ्रेंसेस करो, कि हम ये नहीं चाहते. वी आर बॉर्न इक्वल एंड इफ वी आर गिवन द इक्वालिटी in society, with charity begins at home. जब हम घर से ही ये शुरू करेंगे तभी कुछ हो सकता है. जहां पे रोल जो है एनजीओज का टू क्रिएट अवेयरनेस, टू क्रिएट सेल्फ एस्टीम, कि आप कुछ कर सकती हो, कि आप शक्ति हो, उसको ये बताओ. जैसे हनुमान को बताना पड़ता है, उसके लिए उनको कहना पड़ता है कि नहीं, आप छोटे भी हो सकते हो, बड़े भी हो सकते हो, तो जब आप फंस जाते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज हो जाओ. तो इसीलिए ऐसे ही हम उसको जो चिन्ह लगानी होती है ना, लुत्ती लगानी होती है कि नहीं तू कुछ कर सकती है भाई, उठ. ऐसे जो है ना सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओगी तो नहीं, कुछ नहीं हो सकता है. तो कैपेसिटी बिल्डिंग, एजुकेटिंग, क्रिएटिंग अवेयरनेस, ये सारा कुछ जो सेल्फ एस्टीम है ना उसको रेज करना बहुत जरूरी है, उसकी आइडेंटिटी को बताना बहुत जरूरी है. और लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो सोशल मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट का अपना ही रोल होता है, हर एक फील्ड में होता है. अगर वुमेन को भी अवेयर करना है तो हमारी जो मूवमेंट है, जैसे ये स्वीरा चली हुई है, जैसे आप लोग काम कर रहे हो, बड़ा अच्छा, वर्थ अप्रिशिएटिंग है. वो ऐसी जो है ऑर्गेनाइजेशंस ये काम कर सकती हैं. और इन द एंड मैं कह सकती हूँ कि रिलीजियस लीडर्स का भी ये जो सेल्फ जनरेटेड बाबे हैं ना, वो नहीं, जो पर्टिकुलरली जो लीडर्स है ना, प्रीस्ट हैं, उनका ये रोल हो सकता है कि आप हुक्मनामा जारी कर दो कि जो फीमेल फर्टिसाइड करेगा उसका सोशल बाइकआउट, हम इसको सोसाइटी में नहीं, हम इसके साथ लेन देन नहीं करेंगे, है ना. तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको बाइकआउट करो, इसको या उसको कैसे उसके साथ डील करना है. तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का भी रोल होता है. एंड में मैं कहना चाहूंगी कि 2-3 सजेशंस है मेरियां, कि वन सजेशन इज दैट जैसे हम करते आए हैं कि विमेन एंड डेवलपमेंट, इसकी जगह पे मैं चाहती हूं कि विमेन इन डेवलपमेंट अगर कर दें तो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट, सिंस वी से दैट इन्वेस्टमेंट इज गुड फॉर द विमेन. बट हियर वी आर टू थिंक व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गुड फॉर द विमेन. ये तो हमें पूछो ना कि व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गुड फॉर विमेन. तो इसमें स्पेसिफिकली है कि जब बजट बनता है तो दैट बजट ऑफ द कंट्री, ऑफ द इकोनॉमी should be gender specific and gender sensitive. So formulation of gender sensitive budgeting or census gender sensitive budgeting is very, very important, one. And second, we are to break the bias.
वी आर टू, और ये तभी हो सकता है जब हम जान जाएंगे कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ बायस, what are the implications of bias, which we have already discussed, कि we don't want bias, कि हम लड़कियां हैं, हम वुमेन है, इस करके हमें कोई प्रेफरेंस चाहिए, नो, इस करके हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, नो, वी आर टू ब्रेक दिस bias, and next one is to bridge the gap, whatever gap at education level, at the status level is existing. क्योंकि ये कहते हैं कि किसी भी देश की, अगर किसी भी कम्युनिटी का डेवलपमेंट का लेवल देखना है, तो ये देखो कि उस कम्युनिटी में उस औरत का स्थान क्या है, उस औरत का दर्जा क्या है, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी ये सोसाइटी हो सकती है। और गैप जो एजुकेशन में है, गैप हेल्थ में है, और एम्प्लॉयमेंट में है, और अभी जो इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जा रहा है 8 मार्च 2023 को, उसका एजेंडा भी है, उसमें उन्होंने दिया है कि वी आर टू ब्रिज द डिजिटल गैप। जो ये डिजिटल नॉलेज नहीं है हमारे पास, या इसमें डिफरेंस है कि लड़कों के पास है, औरतों के पास नहीं है, जो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है, जो डिजिटल गैप है उस पे जो स्ट्रेस देना है वो भी हमें ये करना चाहिए। और एंड में मैं अपना खत्म करूंगी कि एम्पावरमेंट, टू एम्पावर, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन देयर शुड बी इक्वालिटी and provision of equal opportunity. Only then we can show our strength, we can show our mettle, and this is possible only through the change of mindset and change of patriarchal system, patriarchal norms, and we are to build the complementary role. We are not to compete at all. And for this, since we say that charity begins at home, so अपने बच्चों को सिखाओ, जैसे मैडम कह रहे थे, गीता जी कह रहे थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नहीं, बेटी पढ़ाओ, मैं कहूंगी बेटी पढ़ाओ और बेटे को सिखाओ। So change will be there, change is definitely there, and we can expect that change will be there, and we will be able to at least minimize the gender discrimination. With this, I end my presentation. So thank you. Thank you so much, Dr. Kamaljeet ji. It was such an elaborated discussion and presentation. Thank you so much. And over to you, Uzma ji. कमलजीत जी, सच्ची मजा आ गया, बड़े अरसे के बाद ऐसा कोई लेक्चर सुना है जो लग रहा था कि वाकई क्लासरूम में बैठे हैं, और वो जो आप सिखा रही हैं हमें, हमारे जो दिमाग को खोल रही हैं, वो एनलाइटमेंट दे रही हैं हम लोगों को, वो टॉपिक्स आप उठा रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया सारा। वेरी वेल प्रिपेयर्ड, वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, और उसमें कोई स्लाइड्स हमें नहीं चाहिए थी, जिस तरह आपने किया बहुत जबरदस्त किया है। अगेन वही मेरा क्वेश्चन है कि औरत जो है डिस्क्रिमिनेशन को इतने अरसे से बर्दाश्त कर रही है, उसका अपना भी एक रोल है इसमें। जब मेरे बेटी पैदा होगी, दूसरी बेटी पैदा होगी, तो मेरा ही मुंह बनेगा। हम लोगों को वो भी कहीं सीखना है, वही जो आपने एजुकेशन वाली बात की है। फिर हमें अपने जो हम राइट्स की बात करते हैं, कितनी जगहों पे औरत ही औरत का राइट ले रही होती है। ये सारा कुछ हमारे सिस्टम में कहीं इंटरमिंगल है। आई डोंट नो किस जगह पे, कहाँ से हम स्टार्ट करें कि वो गुत्थियां सुलझानी शुरू करें, ताकि हम लोग जेंडर बेस्ड वायलेंस को खत्म कर सकें, उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सकें। यस, एज अ मदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि अपने बेटे को सिखाऊं, अपनी बेटी को सिखाऊं, दोनों को सिखाऊं कि हाँ, हम लोगों की एक अपनी जगह है। और आई थिंक सीमा कुछ क्वेश्चन करना चाह रही थी, उन्होंने मुझे यहाँ टेक्स्ट किया था, नॉट श्योर इफ शी इज अवेलेबल, क्योंकि टाइम कम रह गया, तो मैं चाह रही हूँ कि जिन्होंने क्वेश्चन करना है वो। मैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। नमस्ते जी। हेलो जी सीमा। मैं उज़मा से कहना चाह रही थी, बल्कि पूछना चाह रही थी
कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, मतलब हमें इन प्रोग्राम्स को मतलब अटेंड करना है, सुनना है, अच्छा लग रहा होता है। लेकिन अगर कुछ चीजें वो जो एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोग्राम है, अगर हमें गलत लगे तो हम उस पे बात कर सकते हैं यकीनन। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो उज़मा मैं आपसे ही पूछना चाह रही थी, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि हमें हमारे जो भी प्रोग्राम्स है उसमें मजहब को और पॉलिटिक्स को नहीं लाना। जी लेकिन अगर बिल्कुल। हम बहुत खुल्लम खुल्ला ये बातें करेंगे कि जी फला मुल्क में पर्दे का है, फला जगह से लड़कियों को लेके फला जगह ही, जो है वो कश्मीर में या पंजाब में या फला, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इसको माइंड कर सकते हैं। और जो कि कुछ कानून जो कि मजहब के बने हुए या लोगों जो इनको फॉलो करते हैं मजहब को, तो वो माइंड कर सकते हैं इन चीजों को। तो ये मैं उज़मा आपसे, क्योंकि आपने हमेशा कहा कि हमें इस पे पॉलिटिक्स और मजहब को खास नाम लेके या किसी इस तरह डिस्कस नहीं करना है, तो एक मुझे आज ये लगा। और दूसरा जो है, बेशक के यहाँ इस दुनिया में जेंडर बेस्ड वायलेंस है, जो कि हम औरतों को मिलके उस पे सब पे फाइट करना चाहिए। लेकिन उसकी जाहिर बात है कि हम औरतों में ही सबसे बड़ी कमी थी कि हम इतना एजुकेटेड नहीं थे, और या हम नहीं होना चाहते थे। हम आदमी एक कमा रहा है और हम उसके अंडर घरों में रहे हैं। इस तरह हमारी लाइफें जो हमारे माओ की इस तरह गुजरी है, तो यकीनन हमें उससे निकलना है। लेकिन क्या इस दुनिया में आदमी और औरत को ही अल्लाह ने बना के भेजा है? पहले लोग जैसे कि एक मिसाल है कि प्रोवेंस पे लड़ रहे हैं, तो क्या अब आदमी और औरत जो है अपने अपने वो जो पैसा गवर्नमेंट इशू करेंगे कि ये आदमी के लिए है और इस पैसे से औरत पर काम होगा, तो अभी जो सड़कें या चीजें हैं, जो सब काम हो रहे हैं, उसे दोनों यूज नहीं कर रहे? मतलब क्या हम एक और लड़ाई तैयार करेंगे, या हम अपने हकूक को जानने के लिए अपने ऊपर कुछ काम करेंगे? तो कुछ चीजें ऐसी भी हम करें कि हम अपने आप को तैयार करें उस सब चीजों से निकालने के लिए कि औरत को क्या होना चाहिए, या हम एक मजीद लड़ाई तैयार करें कि जनाब आदमी पे गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च करेगी तो उतने औरत पे भी करेगी, तो जो बाकी सब चीजें बनी हुई हैं उसमें औरत नहीं जा सकती? मतलब सिनेमा हॉल है, सड़क है, रो कुछ भी है, कुछ भी XYZ। मतलब अभी कुछ चीजों को हम क्या बहुत इंतहा पे नहीं ले जा रहे हैं, या कुछ जो दो लोग आए हैं दुनिया में पैदा करके भेजे गए हैं एक दूसरे के साथ मिलके काम करें, हम वो सीखने के बजाय बहुत अलग अलग होना नहीं सीखना कुछ। तो कुछ चीजों पे मैं माफी चाहती हूँ, मैं बहुत माफी चाहती हूँ, बिल्कुल हाथ जोड़ के। लेकिन मेरा एक पॉइंट है, ये एक ख्याल है मेरा। तो सीमा, एक तो आप को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने अपना ये प्लेटफॉर्म ही इसीलिए है कि यहाँ हम लोग ये डिस्कशंस करें। तो कमलजीत जी, आप सेकंड पार्ट का कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने पहला मेरे से पूछे। यस, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारे यहाँ रिलीजन या पॉलिटिक्स को हम डिस्कस करें, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में कमलजीत ने बात की है, अब वो देखिए, उन्होंने कहा कि हर मजहब में औरत की क्या पोजीशन है। इन्होंने जैसे मंदिर की बात की, तो मेरे अंदर बड़ी, मैं भी हुई, मैंने कहा यार हम भी तो मस्जिद में नहीं जा सकते जब पीरियड्स होते हैं, हमें भी कुरान पाक को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, नमाज की इजाजत नहीं है। तो ये मुझे पहली दफा पता चला कि अच्छा मंदिर में भी नहीं जा, मुझे नहीं पता था इस चीज का। तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने ये जिस सेंस में इस वक्त बात हो रही है, आप उसको देखिए। आप ये ना देखिए कि हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, नहीं, ये देख रहे हम हैं। तो यहाँ पे एक ग्रुप है ना 20 लोगों का या 25 लोगों का, उस सेंस में बात कर सकते हैं। लेकिन जी हमारे प्रोग्राम इंटरनेशनली है ना, जी तो जी, हमारे प्रोग्राम जी, लाइव इस तो पर जा रहे हैं, हमारे रिकॉर्ड भी प्रोग्राम हो रहे हैं। इंटरनेशनली हैं, तो हम खास बिल्कुल। तौर पे किसी भी मजाहिब का नाम लेके अगर जिक्र करेंगे तो वो कल को वो बात खराबी में बन नहीं, सकती तो है अगर किसी को और उस दिल पे आजारी पे एतराज बन है, सकती है। जी किसी को एतराज है, तो वो हमसे ही कांटेक्ट करेगा ना। तो वही कि इसमें मुझे मेरा एक नहीं ये ख्याल पॉइंट कि था कि ये चीजें हमारे लिए आगे गलत उस पे बन नहीं सीमा, सकती इसमें कोई काबिले एतराज बात मुझे तो कम से कम नहीं लगी है। एक बात उन्होंने की है, सारे रिलीजन्स के हवाले से बात की है। जैसे हम आगे जो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं वो है सिग्निफिकेंस ऑफ फास्टिंग इन ऑल रिलीजन्स। हम किसी एक रिलीजन की बात नहीं करेंगे उसमें, कि सिर्फ ये नहीं कि रमजान आ रहा है तो सिर्फ मुस्लिम्स की हम बात करें। हम सबसे पूछेंगे
कि आपके रिलीजन में फास्टिंग की इक्वली हम लेके आ रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे, ये मेरा कहने का मकसद है। उससे मैंने हमेशा मना किया है, उसको मैं कभी भी नहीं चाहूंगी किसी एक को हम, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या रिलीजन हो, इस प्लेटफॉर्म पे किसी एक चीज को हम प्रमोट करने, वो हम नहीं करेंगे। हम सब इस चीज पे मुत्तफिक हैं, वी आर क्लियर। हाउएवर, अगर ऐसी कोई बात है जो हम सबके हवाले से बात कर रहे हैं, वो हवाले दे रही हैं, वो हर रिलीजन में, अगर आप में से कुछ लोगों को याद होगा स्पिरिचुअलिटी पे हमने किया था, तो प्रशांत ने बहुत खूबसूरत तरीके से हर रिलीजन में स्पिरिचुअलिटी की बात की थी। तो ये हम लोग करते ही आए हैं। तो दूसरा पार्ट जो है वो कमलजीत जी आपकी एक्सपर्टीज उसमें चाहिए। मैं एक्सपर्ट ओपिनियन तो नहीं दे सकती हूँ, वट एवर आई नो एज कि जो ये जेंडर स्पेसिफिक बजट की मैंने बात की कि सड़कें बन रही हैं, सिनेमा हॉल्स बन रहे हैं, और उसमें मेल भी जा सकता है, फीमेल भी जा सकते हैं, नो डाउट। लेकिन when I was talking about the gender sensitive or gender specific budget, from that I mean to say is that when you are looking a specific thing from the gender angle, from the women perspective, this means that if you are having specific budget for the education, मैं यहाँ की बात नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रही हूँ, और वहां पे अगर मैं ये कहूँ कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल बना रहे हो, स्कूल में आपने एक बाथरूम बना दिया, और वो बाथरूम आपने पहले तो बजट एलोकेट कर दिया कि स्कूल्स के लिए इतना बजट होगा, और इस गांव में एक ये मैंने स्कूल बनवा दिया, सरकार ने बना दिया, और उसमें जब बाथरूम बनाने की बात आती है तो उसको कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी जाती है। उसको एक बाथरूम बना दिया, वो चाहे गर्ल्स यूज कर रही हैं, बॉयज यूज कर रहे हैं, मेल मेंबर कर रहे हैं, और फीमेल स्टाफ भी कर रहे हैं। तो उसमें ये भी हो सकता है कि स्कूल के लिए इतना बजट है, और स्पेसिफिकली गर्ल्स स्कूल के लिए इतना बजट है, और उसमें अगर आप को एजुकेशन स्कूल भी बना रहे हो तो उसमें जो बाथरूम्स के लिए बजट रखा जाएगा, इंडिविजुअल जो बजट रखा जाएगा, उसमें स्पेसिफिकली बाथरूम्स के लिए कितना बजट है। टॉयलेट्स यहाँ तो हम देखते हैं डेवलप कंट्रीज में कि चाहे आप पार्क में चले जाओ, चाहे कितने भी रिमोट एरिया में चले जाओ, मेल फीमेल के लिए अलग अलग बाथरूम हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज में स्कूल हैं, वहां पे इसको अहमियत नहीं दी जाती है। इवन इन द रेलवेज प्लेटफॉर्म्स, वहां पे ये अहमियत नहीं दी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि टोटल बजट और उसमें जेंडर स्पेसिफिक बजट जो है कि ये प्योरली लड़कियों के लिए होगा, विमेन के लिए होगा, तो इसमें कोई वो अतकथनी नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि अगर अच्छा जैसे कि कुकिंग गैस है, उसका जब भी कोई बजट बनाया जाता है तो स्पेसिफिकली पूछा जाता है औरतों से कि आपका क्या रिएक्शन है टुवर्ड्स दिस स्पेसिफिक बजट। तो लड़की जो औरतें हैं वो स्पेसिफिकली यही कहेंगे कि किचन का वो आटा, दाल, गैस ये महंगी हो गई है। नो डाउट कि आटा दाल मेल मेंबर भी यूज करते हैं, लेकिन ये इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, गैस अगर 50 रुपए महंगा सिलेंडर हो गया तो उसका डायरेक्टली औरत पे असर पड़ रहा है, ना कि पूरे उसके मेल पे डायरेक्टली असर नहीं पड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये था। तो अगली बात इन्होंने ये कही कि हम इसमें लड़ाई नहीं करवा रहे हैं। ऑन सरफेस ये दिखता है कि फेमिनिज्म, अगर कि ये कोई अगर लेडी कार चला रही है या तो बीबियां बैठी हैं, ये तो मारेगी किसी पे, ये ऐसे कमेंट दिए जाते हैं, है ना। तो और घर में भी जब खाना बनाया जाता है कि एक जना खाना बना रहा है और दूसरा जना खा रहा है ना, इसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि देयर शुड नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह को मैंने खाना बना दिया और दोपहर को आप खाना बनाइए। दैट विल बी competitive role. We are not advocating over here the competitive role, rather complementary role. कि आओ खाना बनाएं, आओ खाना खाएं, not कि मैंने खाना बना दिया आप खाओ,
नहीं, हम तो ऐसा कभी नहीं करना है। ऐसे नहीं मैं कह रही कि हम ऐसा नहीं करते, हमें ये प्रीच करना है कि हमने ये कहना है कि आओ खाना बनाएं, आओ खाना खाएं, आओ सफाई करें, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रोल फैमिली में अगर होगा तो नोबडी इज गोइंग टू ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑर्डर करने लगेंगे कि मैंने ये काम कर दिया, अब आप ये करो, मेरी अर्निंग ये है, अब मैं अपने पे खर्च करूंगी, तो अब मैं नहीं कर सकती, तो यहाँ तो फिर लड़ाई होनी स्वाभाविक है। तो अपना माइंड सेट जो है वो चेंज करने की जरूरत है, अपनी सेल्फ एनलाइटनमेंट भी करो और मेल्स का माइंड सेट चेंज करो। और यहाँ पे अब इसी तरह जैसे कि अगर एक मेल और फीमेल के लिए वॉशरूम की जरूरत है, बेशक के आदमी और औरत की जरूरियात अलग हैं, तो बहुत सारी जगहों में, हमारे भी जगहों पे बाज दफा बस में बैठने वाला आदमी इधर से चढ़ेंगे और औरतें दूसरी तरफ से चढ़ेंगी, मस्जिद में जाने वाला औरतें इधर होंगी और आदमी उधर होंगे, शादियों में होने वाली औरतें इस साइड होंगी, आदमी उस साइड होंगे। आमतौर पे इसीलिए कि बहुत सारी चीजों में दोनों एक डिफरेंट उसमें होते हैं, और शादियों में है औरतें बहुत तैयार हैं, हर आदमी की नजरें उन पर हैं, तो दूसरे आदमी माइंड कर रहे हैं, तो इसी उससे के आदमी उस साइड है, औरतें उस साइड है, तो उस चीजों को भी बहुत वो लिया जाता है कि जी इनके यहाँ तो अभी तक बेपनाह सख्ती है। तो ये भी एक तरह की सख्ती में नहीं, ये भी एक तरह की सेफ्टी में आता है। तो मेरे जो कहने का मतलब मजहब या कल्चरल उससे उठाने की बात थी, वो इसी वजह से कहने का, क्योंकि मैं ये समझी हूँ इन प्रोग्राम को अटेंड कर करके कि इतनी आजादी तो हम सबको है कि हम उस पर आराम से बात कर सकें बड़ों की तरह और उसको समझ सकें। तो मेरे कहने का मतलब इस बात को बता के कि जिन मुल्कों में एक तरफ से आदमी बस में जा रहे हैं, दूसरी तरफ से औरत, या नमाज के लिए एक तरफ से औरतें और दूसरी तरफ से आदमी, तो उनको भी ये लिया जाता है कि वो भी बहुत गलत बात है या बहुत सख्ती की बात है, या उनके यहाँ अभी भी नहीं, वो भी एक सेफ्टी का हिस्सा है, क्योंकि कुछ आदमी या औरतें बुरे भी हो सकते हैं, किसी को औरतें भी या आदमी भी किसी के आदमी को या किसी की औरत को वो गलत उससे भी वो कर सकते हैं। तो बहुत सारा कुछ कल्चरली या मजहबी एक डिफरेंट उससे देखा जाता है और उसे डिफरेंट वे में इम्पोज किया जाता है, डिफरेंट वे में अप्लाई किया जाता है। तो मैंने अपना जो पहला सवाल उस्मा से किया था वो इसी वे में सोच के और पूछना चाहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा। किसी और का कोई कमेंट? हमारे पास आखिरी 6 मिनट है। जी गीता जी। आपने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया क्या क्या प्रॉब्लम है। वाकई में हायर पोजीशन में 2 एक ही महिला देखते हैं, कोई अच्छी जो खूब पढ़ी लिखी सुलझे हुए महिला चाहिए। हमें सरकार चलाने के लिए सुलझे हुए इंसान चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो अच्छी तरह हमारे सरकार को चलाए और हमें फायदा हो और हम अपनी मुश्किलें बोल सके। ऐसा नहीं जो हमें दबा जाए। हम औरत है इसलिए हमारी आवाज नहीं सुनी, ये बात तो हो नहीं सकता है ना। पुराने जमाने में दादी का चलता था, मम्मी का नहीं चलता था, मैंने देखा है। हाँ, पर मेरा अभी चलता है, पहले नहीं चलता था। तो थोड़ा बहुत आस्ते आस्ते मैंने सिर ऊंचा किया। ये सब चीज अपनी एनलाइटमेंट से होता है। इस तरह से जो आप उस्मा जी चला रहे हैं, इसमें हम लोग बहुत एनलाइटेड हो रहे हैं और मुझे तो अच्छा लगता है। ऐसी कहानी, ऐसी जो बातें होती है, इससे हमें पता लगता है। पर एक चीज है, इनको हम कैसे सॉल्व करें। जैसे मैंने देखा जो पंचायत में ऐसे इलिटरेट, रादर इलिटरेट, बिल्कुल अनपढ़ लड़की बैठी है, औरत जिसको अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता, जो गुंडे 2-4 जो रास्ते के है ना सो कॉल्ड डॉन्स, वो हमको उसको सिखा रहे हैं। तो दैट इज नॉट द वे ना। ये कैसे हम ठीक करें? पॉलिटिकल पार्टी तो चली जाएगी, जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं अच्छा काम करेगा वो लोग भी वोट नहीं देंगे। लोग भी जागरूक हो रहे हैं, इसीलिए तो एनजीओ है जो हम जागरूक करते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनको अपनी जागरूकता हो। यही तो सबसे बड़ी बात है। हम क्यों सुनते अच्छा चीज? ताकि हमारे भी दिमाग थोड़ा काम करे, हम भी किसी को बोल सके जो भाई इस तरह चलो, उस तरह नहीं। कोई अंधेरे में जा रहे तो हम बोलेंगे भाई उधर से मत जाना,
रास्ता यदि खराब है तो बोलेंगे उस तरफ से जाओ भाई, उधर से ठीक है ना। जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा अच्छी दिशा दिखाते हैं। हमें अच्छा लोग बनना है, मेन चीज है हमें अच्छा लोग बनना है। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कमलजीत जी, आपके जो वे, आई एम रियली बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आपका। थैंक यू। कमलजीत जी, मुझे इंडिया पाकिस्तान को इतना पता नहीं है क्योंकि मैं काफी अरसे से यहाँ रह रही हूँ। तो यहाँ अब ये देखा गया है कि यहाँ इन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपनी कैबिनेट में औरतों को ज्यादा लेके आना है। पहले आई थिंक कुछ अरसे पहले इन लोगों ने एक इंट्रोड्यूस करवाया था कंसेप्ट 50-30 का, शायद कि 50% औरतें होंगी और उनमें से भी जो 30%, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 30% जो है वो इमिग्रेंट लोग होंगे। अच्छा, जी हाँ, तो ये 50-30 का है, मुझे इतना क्लियर नहीं है, मैं इसको दोबारा चेक करूंगी कि क्या था। फिर यहाँ ये जो हमारा, अगर आप ये देखें, जो सवेरा प्रोजेक्ट है उसको जिसने फंड किया है उसका नाम ही विमेन एंड जेंडर इक्वालिटी है। उन लोगों ने फंड किया क्योंकि उन्हें यहाँ भी तो इसकी जरूरत महसूस हो रही है। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं ये हर जगह है, इसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम है। यहाँ तो सबसे पहले हर औरत ही यहाँ कहती है कि यार मुझे तो वो उतने पैसे मिल ही नहीं रहे जितना मेरा कुलीग कमा रहा है, हम दोनों वही काम कर रहे हैं। तो अभी यहाँ बहुत सी चीजें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होंगी, अच्छे तरीके से, अच्छे प्लेटफॉर्म से ये बातें जा रही हैं। जैसे आपने कहा वो एनजीओज का रोल जो है अवेयरनेस का है, इसी तरह के प्लेटफॉर्म पे बहुत जगहों पे ये बातें हो रही हैं। इंटरनेशनल वुमेन डे का ये कहीं मकसद नहीं है कि आप आए औरतों को कहें वाह वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, ये ले, नहीं, आगे क्या करना है। बात तो ये है कि हमें आगे क्या करना है, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की, उसमें हमने कैसे मर्दों के साथ चलना है, उन्हें अपना साथी बना के। हम लोगों ने, अगर वही बात जो मैं बार बार कहती हूँ कि जो कमल जी ने भी बात की थी कि सेंचुरीज से ये नॉर्म्स चले आ रहे हैं, ये किसने बनाए हैं हमें नहीं पता, लेकिन अब वो टाइम है इनको चेंज किया जाए। अगेन नॉट इन कंपटीशन, साथ लेके एक दूसरे के साथ कि हाँ कभी तुम मेरे बर्तन धो दो, कभी मैं बर्तन धो दूंगी, क्योंकि काम तो हम घर का कर रहे हैं ना, ये नहीं है। और बड़ा प्यारा कल मैं सुन रही थी कि आदमी जॉब करके आता है तो पता है कि वो काम करके आया है, औरत इतनी देर घर में जो काम कर रही होती है वो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं होता कि वो काम कर रही है। वो भी तो थक सकती है शाम को, मुमकिन है कि वो आया, वो तो फिर भी 6-8 घंटे जो उसने चाय पी, उसने आराम से लंच किया, वो कंप्यूटर के आगे बैठा या अपना काम किया, वो तो मशीन की तरह बेचारी लगी रही, बच्चों को स्कूल भेजा, घर की सफाई की, खाना, लॉन्ड्री, सारा कुछ किया। लेकिन वो कोई नहीं देखता कि उसने भी आराम करना होगा, शाम को वो भी उतनी ही थकी होगी, शायद ज्यादा थकी हो। इस तरह की जो बातें हैं इनकी बहुत जरूरत है अभी डिस्कस करने की और सॉल्यूशंस ढूंढने की। हमारा जो आप सबको पता है, जो जिन्होंने हमारा फ्लायर देखा है, कि हमने इस दफा पैनल डिस्कशन रखी है। आमतौर पे हम भी वही करते थे, कुछ स्पीचेस होती थी, कुछ अवार्ड सेरेमनी होती थी और फिर एंटरटेनमेंट होता था। इस दफा टोटली हमने एजुकेशनल पार्ट रखा है, हाउ टू एंगेज मेन टू एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। हमें उनको इन्वॉल्व करना है खत्म करने के लिए। खत्म तो शायद अभी हम ना कर सकें, कम से कम हम उसे रोक तो सकें, प्रिवेंशन तो कर सकें, आने वाली नस्ल को बचा सकें बहुत सी चीजों से जो हो सकता है हमारी पहली नस्लों ने देखी है या कुछ हम में से भी लोगों ने देखी है। और जरूरी नहीं डायरेक्ट हम लोगों को एक्सपीरियंस हुए। आई थिंक हम लोगों को कोई ना कोई, हम जिंदगी में किसी ऐसे को जरूर जानते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरा है, जेंडर बेस्ड वायलेंस से गुजरा है, जिसको ये कहा गया कि तुम पैदा ही क्यों हुई मेरे घर में। ठीक है, तुम अगेन हैट्स ऑफ टू कला मूवी, उसकी पहली बात ये कि तुम भाई को खा गई, कितनी ढीठ थी वो, जो अपना आप मनवाने का था कि माँ को बेटा चाहिए था कि हाँ बेटा पंडित होता है, औरत के नाम के साथ बाई लगता है। तो ये बहुत बहुत ही जबरदस्त वो मूवी है। तो ये बातें की जा रही हैं। जी जुब्दा, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
कौन सी movie? मैं उस्मा आपकी बात से मुझे एक बात जहन में आई है कि जो आपने कहा कि औरत सारा दिन घर में काम करती है और मर्द जब थक के आता है तो वो ज्यादा प्रेफरेंस होती है उसकी। मुझे अपनी मदर इन लॉ की बात याद आ रही है कि मेरी मदर इन लॉ कहा करती थी कि बेटा मर्द तुम तो एक खाविंद की बीवी बनके तो एक खाविंद की बीवी बनती हो तो मर्द जो है वो 10 मर्दों की बीवी बनके तो सारा दिन कमा के लाता है। मैं वो सोच एकदम मेरे जहन में ये क्लिक हुई बात के यार हम लोग जो थे सारा दिन एक टांग पे खड़े हो गए भी कह लो ना काम करना सारा दिन काम करना है तो वो हमारी वैल्यू हमारी जो पहले की खवातीन थी ना लेडीज थी उन्होंने हमारी वैल्यू जो थी ना वो डिग्रेड कर दी थी कि तुम लोग कुछ नहीं हो जो मर्द करके लाता है वही सबसे अफजल है। तो ये तो ऐसा हुआ कि औरत ही औरत की दुश्मन हो गई ना। नहीं ऐसा- एक बात ऐसा और भी है, ठीक है जो जिसमें सहन नहीं है वो आगे नहीं चल सकता। सहन भी बहुत बड़ी चीज है, सहन शक्ति। थोड़ा सा इंतजार करो, टाइम बदल सकता है। जब झटपट कोई डिसीजन ना लो। तकरार तो होती रहती है, तकरार किससे नहीं होती है? बेटे से होती है, हस्बैंड से होती है, हर एक से होती है, ननद से होती है, सास से होती है। पर उनको समझाओ, उनको अपने तरफ ले आओ, अपनी व्यवहार से करो। ये अपनी व्यवहार जितना तुम मधुर करोगे वो भी आ जाएंगे। ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। मैं तो अपनी सौतेली सास के साथ रही हूँ, हर चीज उल्टा, फिर भी मैं उनके साथ हाँ जी हाँ जी। ये जो हाँ जी करने की जो आदत है इसे वो समझ लेती हैं जो ये लड़की तो मैं कुछ भी कर लूं इसके तो ये तो मेरे तरफ ही बोल रही है। कि जो आपके तरफ उल्टा है उसको सीधा करने की कोशिश करो। आप में ये बुद्धि होनी चाहिए। तकरार करके अलग होना 2 मिनट लगता है, पल भर नहीं लगता है, पर इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है। फॉर द चाइल्ड। जी गीता जी, जैसे अभी कमल जी ने डाउरी की बात की थी, जहेज की बात की थी, तो मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ जहेज को लेना देना बहुत बुरा समझा जाता है। तो वो क्या है जहियत मीन्स? जहेज डाउरी मीन्स इसका मतलब क्या होता है? जहेज को क्या कहते हैं आप लोग? डाउरी दाज की दहेज का मतलब दाज का मतलब ये होता है कि जब लड़की जाती है अपने ससुराल तो उसको अपनी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसका कोई हिस्सा नहीं देते हैं। चाहे रूल है लेकिन उसको नहीं देते हैं। उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स के रूप में, चाहे हैवी गिफ्ट्स दे दें, वो उसको देते हैं। तो उस जो अमाउंट होता है उसको कहते हैं दाज। लेकिन इसकी फॉर्म भी चेंज हो रही है ना। तो ये पेरेंट्स देते हैं, इसीलिए इसको बर्डन कहते हैं। और इसमें मैं ये ऐड करने लगी थी, सॉरी मैं जुबदे आपको आपको इंटरप्ट किया। कोई बात। वो ये जो पहले बात हो रही थी ना कि डोमेस्टिक वर्क को, ये पहले से ही चला आ रहा है कि दिस इज अनपेड वर्क। और अगर हमारे पास ये भी स्टेटिस्टिक्स हैं कि अगर इस अनपेड वर्क को हम कन्वर्ट कर लें इन करेंसी में, तो ये क्लीनिंग का, कुकिंग का, वॉशिंग का, सारे जो काम है जितनी हम मेड रख के, डोमेस्टिक हेल्प को रख के उसको पेमेंट देते हैं, तो वो तो किसी देयर इज नो मैच। हम कई बार ज्यादा कमाई करते हैं और जो जीडीपी में भी वो बढ़ावा होगा। तो और दूसरी बात यह है कि औरत भी अगर, जैसे पता नहीं किसने पॉइंट उठाया था कि अगर उसकी कमाई ज्यादा भी है लेकिन कभी भी उसको ब्रेड विनर का खिताब नहीं दिया जाता। नहीं बेल को कहेंगे कि ये तो ब्रेड विनर है, बाहर से काम करके आया, इसको इसकी सेवा करो। लेकिन अगर तू घर में काम करती रही तो कुछ भी नहीं, ये अनपेड वर्क काम है और तू तो ब्रेड विनर है ही नहीं। और तीसरी बात ये बहुत कॉमन है, औरतें भी कहती हैं, मेल मेंबर तो कहती हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है। आई टोटली डिसएग्री विद दिस। इसका आंसर देने के लिए पहले हम देखेंगे कि वाई के जब भाइयों में शादी हो जाती है तो कहते हैं ये आ गई, इसने बंटवारा कर दिया घर का, वेरी बैड, है ना, ये कहते हैं। दूसरी बात ये है कि सास बहू की लड़ाई होती है और ससुर और बहू की नहीं होती है।
लेडी ही चाहती है कि मेरे बेटा हो या मेरी बेटी के बेटा हो। इसके साथ कुछ नोशंस जुड़ी हुई हैं। वो नोशंस ये हैं, चाहे वो पक्की हैं चाहे नहीं है, लेकिन सोशल कस्टम्स के जरिए, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस के जरिए ये नोशन जुड़े हुए हैं कि ये माना जाता है कि अगर मेरी बेटी के घर में बेटा पैदा हो जाएगा तो आई एम सेटिस्फाइड, ये लड़की बस गई वहां पे घर पे जाके, इसको अब इसके ससुराल में इसकी इज्जत बढ़ जाएगी, तो मैं प्रे करूंगी कि भाई इसके बेटा ही हो जाए। दूसरा यह है कि कभी भी सास बहू के साथ अननेसेसरली नहीं लड़ेगी। कंट्रडिक्शन तब आती है चाहे वो बहू कितनी भी अच्छी हो, उसको ये थ्रेट महसूस होती है कि अब जो मेरा बेटा था अब ये कहने लगी कि ये तो मेरा आदमी रहा नहीं, है ना, तो ये मेरे से कुछ खुश रहा है। तो इसके ये कोई कहने की बात नहीं है कि औरत औरत की दुश्मन है, ये तो साइकी में भरा हुआ है। लेकिन मैंने देखा कि वो बहू और सास की बनती भी बहुत है। तो इस पे आपको दोबारा बुलाएंगे, आपको बुलाते रहेंगे, अब बुलाते रहेंगे और कोई एक ऐसा टॉपिक लेके उस पे डिस्कशंस रखेंगे। बहुत बहुत जो भी अच्छा है। किया आज तो। हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा था सारी डिस्कशन। ऐसे जुस्सा बहुत है उनमें बोलने का। जबरदस्त। आपको समझ आ गया कि दहेज क्या होता है? आपके हाँ, यहाँ पहले ये- दहेज नहीं देते? दिस इज सरप्राइजिंग। यूएस में वो क्या कहते हैं, आपकी we are losing your voice. जी सुरजीत जी, मुझे तो ये मसला है कि हमने जब भाभी, जब मेरी दो भाभियां आई तो हमने कहा कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और हम लोग मैंने इस भी पे नहीं बहुत- लिया, मैंने भी दहेज नहीं तो लिया। उन्होंने कहा क्या हम अपनी बेटी को नहीं हाँ। दे सकते? एग्जैक्टली। क्यों नहीं दे सकते? हम लोगों को क्या कहेंगे? इस वक्त मुझे एग्जैक्टली यही फेस करना पड़ रहा है। जब मेरे बेटे की शादी आ रही है, मैंने उनसे कहा कुछ नहीं, उन्होंने कहा हमें लोगों को तो दिखाना है, बताना है, और लोग प्राइड फील करते हैं। यस, राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये कंसेप्ट चेंज करना है हमें, हाँ, यस। कि नहीं लेना है। सो आज की डिस्कशन, सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि हमने ये इसको चेंज करना है। तो दैट विल बी वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, और जो भी कमलजीत जी आपने जो बातें कही हैं, इट वाज वंडरफुल। सो आई थिंक इट्स डिनर टाइम फॉर एवरीवन एंड वी शुड लीव नाउ। गुड नाइट। Thank you so much. So much, Kamalji ji, once again. Good night. Thought we were in a university room. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you, Uzma, for organizing. Have a nice weekend. Have a nice weekend.